All right, let's start with today's paper. Today's paper is an IGCSE 0620 paper 4-2. As we already know, the time for this paper is 1 hour 15 minutes. And let's start with this paper today. Diamond and graphite, one of the macromolecules and allotropes of carbon, they're very important. Diamond and graphite are different solid forms of carbon, and the carbon atoms in the diamond and graphite are arranged in different ways. State the number of covalent bonds each carbon atom has in diamond. Now, carbon is in which group? Carbon comes in group number 4. And group number 4 means that it is going to have what? 4 electrons in its outermost shell. And having 4 electrons in the outermost shell means that it is going to form how many bonds? 4 bonds in the surroundings. 4 bonds will be formed. State the term used to describe the structure of diamond. Now, diamond structure is known as giant covalent. Name an oxide that has a similar structure to diamond. Oh, if you look at the structure of diamond, it's quite like the structure of, you can say, silicon dioxide as well. जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा ऐसे ही फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है और आगे एक्सटेंशन होती हैं. इट इज काइंड ऑफ लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज वेल. फर्क ये होता है कि कार्बन डायमंड के अंदर सारे कार्बन एटम्स होते हैं, बट SiO2 में सिलिकॉन होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है. Describe the arrangement of the atoms in graphite. Hexagonal layers. Hexagonal layers is the arrangement of atoms in graphite. अगर आपको डायग्राम्स याद हो, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है ग्रेफाइट एटम्स का. They are arranged in these different layers. They have, these weak van der Waals forces between different layers as well. इस तरह यहाँ पे भी एक लेयर होती है. This is how graphite is arranged. Explain how graphite conducts electricity. Anything would conduct electricity if it has free electrons. Anything will conduct electricity अगर उसके पास free mobile electrons present है. Buckminster fullerene is a simple molecular form of carbon. मतलब it's also an allotrope of carbon. Allotrope of carbon का मतलब है that it will only have one carbon, one atom, और वो सारे carbon होंगे. The relative molecular mass of Buckminster fullerene is 720. Determine the number of carbon atoms in one molecule of Buckminster fullerene. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम्स है? टोटल मास क्या है इसका? बकमिस्टर फ्लोरीन का 720. एक कार्बन का मास क्या होता है? 12. सो 720 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 60, बिकॉज ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, मतलब इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब कार्बन है. So you are just simply going to take the MR divided by the MR of carbon and you'll find the number of carbon atoms. All form of carbon burned to produce carbon dioxide. Name the substance that is used to test for carbon dioxide, and that is going to be lime water. Can someone tell me that what is the positive test of this result? Musa, इस टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? उससे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, व्हाइट सा क्लाउडी सा हो जाएगा, तो वो होगा पॉजिटिव टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट वो कहता है सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल. सजेस्ट व्हाई सोडियम इज stored under oil to prevent it from reacting with air. क्योंकि जितने भी ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं दे आर क्वाइट रिएक्टेड, बहुत रिएक्टिव होते हैं. सो प्रिवेंट देम रिएक्टिंग विद एयर. एयर मतलब कि ऑक्सीजन मोस्टली, वरना बहुत एक्सप्लोसिव विग्रस रिएक्शन हो सकता है. Sodium burns in air to form sodium oxide. Describe the term given to the reaction in which a substance burns. इस रिएक्शन को हम कहते हैं combustion, where the substance burns. State the color of the flame seen when sodium burns. तो फ्लेम कलर्स इंपॉर्टेंट हैं IGCSE में. ओ लेवल्स में बहुत रेयर है, ठीक है, ओ लेवल्स में कम आता है, बट येलो फ्लेम इज सीन व्हेन सोडियम बर्न्स. राइट अ केमिकल इक्वेशन. इसी तरह आपको पोटेशियम का पता होना चाहिए, लाइलैक होता है. कैल्शियम का अगर आ जाए तो ब्रिक रेड होता है. बेरियम का अगर आ जाए तो एप्पल ग्रीन होता है, ठीक है. तो राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन सोडियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. सो सोडियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ठीक है. कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. अब हमें पता है कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या होता है? +1, ग्रुप 1 में है ना, और ऑक्सीजन क्या होता है? 2- क्योंकि ग्रुप 6 में है. तो ऑक्सीजन को चाहिए है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे?
एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब कि हमें दो सोडियम चाहिए होंगे ना, ताकि दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करें और फिर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है इट कैन बिकम अ नेगेटिव आयन। और अगर हम इसका फॉर्मूला भी बनाए तो भी वो ऐसा ही बनता है। Na+1 है और O-2 होता है, तो क्रॉस कर ले तो क्या फॉर्मूला बनता है? Na2O। यू कैन सी वी हैव टू NAs ओवर हेयर एंड वन ऑक्सीजन। इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? +1 +1। ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -1। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, करंटली उसके अंदर कितने होंगे? 6 electrons are present in the outermost shell, but two of them have come from two of these sodium। ठीक है, सोडियम का जो outermost shell होता है वो थर्ड शेल होता है which contains 1 electron, लेकिन अब जो उसका outermost shell है वो कौन सा है? सेकेंड शेल है, which is complete। this sodium as well, this sodium as well। क्योंकि हुआ क्या था, ये जो सोडियम था ये क्या होता है? 281। ये 281 से एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या बन गया है? 2 8। Sodium reacts vigorously with water to form aqueous sodium hydroxide, which is a strong base. Explain in terms of the proton transfer what is meant by a base। Base का मतलब होता है proton acceptor and acid का मतलब होता है proton donor। State a pH number that indicates the presence of a strong alkali। Strong alkali का क्या pH होगा? pH 14। अगर आपको पूछे कोई वीक एल्कली का क्या होगा तो 8 9 कह देना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? 1 या 2। वीक एसिड क्या होगा? 5 या 6। स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिथाइल ऑरेंज के कलर्स आप याद रखें। मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में होता है और जब बेस में होता है। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिड एंड बेस? सर एसिड में रेड, बेस येलो। गुड जॉब। एसिड में रेड और बेस में येलो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या कलर होगा? येलो। इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ऑलराइट जी, हमने निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। निकल आएंगे। पूरा स्टेप्स दिखाने हैं कैसे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही पेपर में करके आना है, वहां शॉर्टकट्स नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ओवर मास ओवर MR। तो मास क्या दिया हुआ सोडियम का? 0.345। MR ऑफ सोडियम क्या होता है? 23। तो साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेट करते जाओ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है। 0.015 आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोडियम। नाउ व्हाट आर द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? कैन समवन टेल मी, अगर सोडियम के 0.015 मोल्स हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स होंगे? सर सेम मोल्स। सेम क्यों होंगे? बिकॉज दे हैव द सेम रेशो, 2:2। एंड इफ दे हैव द सेम रेशो देन दैट मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल्स क्या हो जाएंगे? 0.015। 0.015। अब हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। सो मोल्स हमारे पास आ गए NaOH के 0.015 डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है। हाँ यही वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन ये CM में दिया हुआ है तो इसको DM में कर ले तो क्या बन जाएगा? 0.05। 1 2 3 0.05 बन जाएगा। एंड दैट विल बी द आंसर फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर DM³ कुछ मिस तो नहीं कर रहे? ये आंसर क्या आ जाएगा? 0.3। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। अब वो कह रहे हैं डिटर्मिन द MR ऑफ NaOH एंड कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर DM³। अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन किस में निकाली है? मोल पर DM³ में। हमें कॉन्सेंट्रेशन अब चाहिए ग्राम पर DM³ में। पहले MR निकाल ले NaOH का। Na क्या होता है? 23। ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, क्या बना? 40। तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ बताने वाला हूँ, याद रख लें। ग्राम पर DM³ इज इक्वल टू मोल पर DM³ कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द MR। कि आपकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर DM³ में निकली थी ऊपर, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो अगर MR के साथ, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर DM³ आ जाएगी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। When NaOH is added to aqueous iron 3 chloride, a solid product is formed. Name the type of reaction where a solid
इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू सॉल्यूशंस, मतलब कि एक इनसॉल्युबल को सॉलिड फॉर्म हुआ है दो सॉल्युबल से, वी कॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कलर क्या होगा सॉलिड प्रोडक्ट का? Fe3 है। आयरन 3 क्लोराइड में Fe3 है, अगर Fe2 होता तो ग्रीन, Fe3 है तो रेड ब्राउन। नेम दिस सॉलिड प्रोडक्ट। अच्छा, तो आयरन 3 क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, मतलब कि FeCl3 रिएक्टेड विद, रिएक्शन बनाना ही पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? सिंपल प्रेसिपिटेशन, Fe आ जाएगा OH के साथ, Na आ जाएगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा FeOH3 प्लस NaCl। तो जो सॉलिड बन रहा है दैट इज व्हाट? FeOH3, एंड दिस इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो आयोनिक इक्वेशन इसकी लिख लें। तो आयोनिक इक्वेशन में FeOH कैसे बना? सिर्फ व्हेन दी Fe3 प्लस आयंस, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। और ये सॉलिड किस तरह बना था? Fe आयन से और OH माइनस आयन, तो Fe के 3 प्लस आयंस थे। हाउ डू आई नो दैट Fe वाज 3 प्लस आयंस? क्योंकि ये FeCl3 था, ठीक है। ये रिएक्ट कर गया किसके साथ? OH माइनस आयंस के साथ टू फॉर्म व्हाट? Fe। OH का अपना चार्ज -1 होता है ना, और Fe का +3, तो ये क्या बन जाएगा? FeOH3। बैलेंस कर लें, दिस इज गोइंग टू बी योर आयोनिक इक्वेशन। Sulfuric acid is manufactured by an industrial process. Sulfur is obtained from sulfur-containing metal ores. The sulfur in the metal ore is converted to sulfur dioxide, which is then oxidized to sulfur trioxide as shown. किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम भी था मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, वही जवाब दे दे खुद ही। नेम अ मेटल ओर विच कंटेन्स सल्फर। बहुत रेयर क्वेश्चन है ये, दैट इज सर गोइंग टू बी मैग्नेटाइट। जिंक सल्फाइड। वेरी रेयर क्वेश्चन, बहुत रेयर तरीन क्वेश्चन है, याद रखें, ठीक है। जिंक ब्लेंड एक होता है जिसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं। यू कैन राइट डाउन जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिंक ब्लेंड, यहाँ से आता है सल्फर, ठीक है। मेमोराइज इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत पहले सिलेबस में भी हुआ करता था, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के अंदर पढ़ते थे इसको। डिस्क्राइब द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स मेटल ओर्स टू सल्फर डाइऑक्साइड हीटिंग, ठीक है। नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। The reaction that produces sulfur trioxide is an equilibrium. The forward reaction is exothermic. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो ये मैं लिख दिया, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड क्या है? एंडोथर्मिक है। स्टेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज टू मेक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपको याद होना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में टेम्परेचर क्या यूज करते हैं? 450 टेम्परेचर। हम प्रेशर क्या यूज करते हैं? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? V2O5। डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम। पहले आप लिखोगे दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। फिर आप लिखोगे दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये आपने फुल सेंटेंसेस में यहाँ पे फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर लिख देने हैं। स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मूसा वेयर इज द इक्विलिब्रियम सपोज टू शिफ्ट? टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो की तरफ जाना चाहिए या एक्सो की तरफ? फिर एंडो। हम्म, फातिमा गुड जॉब। रैंडो। जाएगा एंडो की तरफ। अब हमने ऊपर देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सो। और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से तो एंडो वाली फेवर होगी साइड, मतलब कि बैकवर्ड। तो आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। वाई द बैकवर्ड रिएक्शन? आप बोल दो लेफ्ट हैंड साइड मूव करें बिकॉज द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और साथ आप बोल देना जो फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड वाज व्हाट? एक्सो। अगर आपको फॉरवर्ड को फेवर करवाना है तब तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड? जब आप प्रेशर बढ़ाते हो
तो कौन सी वाली साइड फेवर होती है? जहां मोल्स कम होते हैं। अब आपको इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है? इफ यू रिमेंबर, ये अच्छा बल्कि लिखा हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ टोटल आर ऑन द लेफ्ट? 2 + 1, 3 मोल्स लेफ्ट पे हैं, राइट पे कितने मोल्स हैं? बस ये। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से कौन सी साइड फेवर होगी फातिमा, कैन यू टेल मी? दी Actually, फॉरवर्ड साइड। इक्विलिब्रियम विल मूव टू द forward side. Why? Because there are less number of moles on the right hand side. Explain in terms of particles what happens to the rate of reaction when the temperature is increased. यार ये बड़ा कितनी दफा कर लिया। Agha Heather, kindly tell me the answer for this 3 mark question. Complete. Hmm. so when the temperatures increase, the particles gain kinetic energy, which increases the speed of the reaction, and there are more efficient frequent collisions. थोड़ा छोटा लग रहा है, देखते हैं। When you increase the temperature, the kinetic energy of the particles will increase, which will increase the speed of the movement of particles as well, which means they will collide more often with each other. And while they collide, they would have now sufficient energy to convert into products as well. क्या बात का मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा समझते हैं। 3 मार्क्स का सवाल है ना, मजाक तो नहीं। पहले भी कोलिजन तो हो रही थी, ऐसा तो नहीं है कि पहले कोलिजन नहीं हो रही थी। ठीक है, ये रिएक्टेंट पहला आता था, ये दूसरा रिएक्टेंट आ रहा था, कोलिजन हो रही थी। लेकिन उस कोलिजन का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मतलब कोलिजन हो रही थी, वो प्रोडक्ट लेकिन बन नहीं रहा था। अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी भी कोलिजन हो रही है, लेकिन थोड़ा जोर से हो रही है, थोड़ी एनर्जी के साथ हो रही है, कि वो कोलिजन सक्सेसफुल हो रही है। पहले भी हो रही थी, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ गैस है, पार्टिकल्स क्या रैंडम मूव नहीं करते। कोलिजन हो रही थी, ज्यादा भी हो रही होंगी, रैंडम थी, हैपहैज़र्ड थी, बट वर दे सक्सेसफुल? दे weren't सक्सेसफुल। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ है कि अब उन कोलिजन्स के अंदर भी एक सफिशिएंट एनर्जी है। इट्स नॉट जस्ट कोलिजन, एक एनर्जी है उन कोलिजन्स के अंदर, कि अब जब बच्चे कोलाइड करेंगे ना ये आपस में, तब तो पक्का प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ओवरऑल फिर आप एंड में बोल दोगे एक लाइन कि क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये मेन बात तो बोली नहीं हमने, कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। Name the compound formed when sulfuric acid reacts with ammonia. H2SO4 reacts with ammonia to form ammonium sulfate. अब NH4+1 होता है, लेकिन सल्फर -2 होता है ना, तो इसके साथ 2 आ जाएगा और SO4 ऐसे। सो इट्स गोइंग टू बी अमोनियम सल्फेट। मैं भी फॉर्मूला बना रहा हूँ, हमने तो नाम देना। वी आर जस्ट आस्क द नेम ओवर हियर, सो इट इज गोइंग टू बी ammonium sulfate. A student prepares magnesium sulfate crystals by adding excess magnesium to dilute sulfuric acid. ठीक है, क्या डालना है? Magnesium to dilute sulfuric acid. Mg plus H2SO4. Can someone tell me what are the products formed when a metal reacts with an acid? Salt plus water. दोबारा सोचें। हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस एसिड है। अगर मेटल ऑक्साइड होता या मेटल हाइड्रोक्साइड होता और एसिड के साथ रिएक्ट करता, देन वाटर होता है। गॉट इट? क्लियर हो गया? जी सर, वो मिक्सअप कर दिया था। हाँ, सिर्फ मेटल जब अकेला मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो बाय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट वुड बी द 2 ऑब्जर्वेशंस? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा मतलब कि नो मोर फिजिंग। ठीक है, या फिर आप बोलो कि जो सॉलिड था ये खत्म हो गया, मतलब कि द सॉलिड स्टॉप्स dissolving. The excess magnesium is removed by filtration. State the general name given to the solid separated by a solution by filtration. जो पीछे solid रह जाता है after filtration, उसको हम क्या कहते हैं? बचा हुआ residue. The aqueous magnesium sulfate is heated and the crystals begin to appear. Suggest the name for the solution which जिसमें और कुछ dissolve नहीं हो सकता, उस solution को हम कहते हैं saturated. Saturated का मतलब that it is now full of concentrated. बहुत कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर, आप मजीद कुछ डालोगे, मिक्स करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा।
Suggest why more crystals of magnesium sulfate appear on cooling. Suggest why more crystals of magnesium sulfate appear on cooling. अगर ज्यादा क्रिस्टल्स जल्दी से फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कम सॉल्युबल है, ठीक है, बिकॉज यू विल से दैट इट इज लेसर सॉल्युबल। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स वैसे भी डाउन द ग्रुप नीचे जाते जाते आपके पास डिक्रीज हो रही होती है। कोई भी चीज सजेस्ट व्हाई मोर क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपेयर ऑन कूलिंग, बिकॉज आप ये बोलोगे क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल होते तो वो नहीं अपेयर होते। तो व्हाट इज द टर्म गिवन टू द क्रिस्टल्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? जिन क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि यार इस चीज के अंदर पानी है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। The student reads the sample. All right, kids, start this question. I'll give you 3 to 4 minutes, and when you're done, let me know. अच्छा जी, so we have to calculate the MR of MgSO4. कैसे निकालेंगे? 24 plus 32 plus 16 plus 16. 24 plus 32 plus 16 into 4. That will give us 120. MR आ जाएगा आप लोग बस 120. Moles of MgSO4 कैसे निकालेंगे हम? Number of moles is equal to mass over MR. mass हमें दिया हुआ है 2.4. इसको डिवाइड करते हैं आप 120 से, आंसर आ जाएगा 0.02. दीज वुड बी द मोल्स ऑफ MgSO4 फॉर्म। तो वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स निकालें कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अगर हमारे पास MgSO4 के मोल 0.02 हैं, देन दैट मीन्स MgSO4 हाइड्रेटेड के मोल्स कितने होंगे? कैन समवन टेल मी? So 0.02. एग्जैक्टली, ठीक है, 0.02। अब वो कह रहे हैं दैट लॉस्ट मोल्स कितने हुए हैं? MgSO4 XH2O has find it has lost 0.14 moles of H2O और रिमेनिंग आपके पास है 2.4 ग्राम ऑफ MgSO4, ठीक है। नाउ 0.140 को अगर हम डिवाइड कर दें, 0.140 डिवाइडेड बाय एक रेशियो ले लेते हैं ऑफ 0.02, दैट मीन्स कि इनके दरमियान रेशियो ऑफ मोल्स क्या आ गया? इफ वी टॉक अबाउट MgSO4 एंड XH2O, इसके मोल्स क्या थे? 0.02, H2O के कितने थे? 0.140 लॉस्ट हो गए हैं। तो अगर हमने इनका रेशियो लिया है विद द हाइड्रेटेड वन, द आंसर यू विल गेट वुड बी 7। सिंपल, क्लियर। एक लंबा मेथड भी है। लंबा मेथड ये है कि आप पहले इस पूरे हाइड्रेटेड का MR निकालो या मास निकाल लो, फिर मोल्स यूज करके, फिर उसके मास में से आप इसका मास माइनस करो, फिर आप वाटर का MR लो जो कि होता है 18, फिर आप देखो कि 18 को डिवाइड कर दो टोटल मास है, वो भी आपको एक्स दे देगा। आसान तरीका क्या है कि हमने रेशियो ले लिया है किसमें? मोल्स ऑफ वाटर लॉस्ट में, और MgSO4 हाइड्रेटेड के जो मोल्स थे 0.02, तो वो रेशियो क्या आया? 7। मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स वर देयर ओवर हियर। If the student uses dilute nitric acid instead of sulfuric acid, the salt would be magnesium nitrate. वो कह रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट इज हीटेड। याद रहे जब भी मेटल नाइट्रेट्स आर डीकम्पोज्ड, क्या 3 प्रोडक्ट बनते हैं? कैन समवन टेल मी द 3 प्रोडक्ट्स दैट आर मेड? कोई नहीं बता रहा। When metal nitrate is heated, it forms a metal oxide, oxygen, and nitrogen dioxide. Balanced. Question number 5. Ethane is an alkane which undergoes a photochemical reaction. Write the general formula of alkanes. CnH2n plus 2. Why is this reaction described as photochemical? Because it needs UV light. Because it needs UV light. किसी भी रिएक्शन में जब लाइट चाहिए होती है हम उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। In this reaction, an atom of hydrogen is replaced with chlorine atom. रिप्लेस हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नेम द टाइप
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है। एक तो देखो क्लोरोइथेन बनाना, आपने C2H6 था, C2H6 को आपने Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। आपका उस प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H6 में जो 6 हाइड्रोजन थे उनमें से 5 अभी भी हैं, बट साथ एक क्लोरीन लग गया, तो बचा हुआ पीछे प्रोडक्ट क्या था, एक HCl भी तो बना ना, कि इस क्लोरीन की जगह H आ गया था और H उधर चला गया था। सो द अदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द रिएक्शन इज शोन ओवर हियर। नेम द एनर्जी लेबल्ड ए। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, द एक्टिवेशन एनर्जी। नेम द एनर्जी चेंज लेबल्ड बी। इसको हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज, और वो इस वक्त क्या है वैसे, नेगेटिव। वी कॉल इट द एंथैल्पी चेंज। अगर ये एरो ऊपर की तरफ होता है इन एन एंडोथर्मिक, वो पॉजिटिव होता है। How does the energy profile diagram show that this is an exothermic reaction? Because reactant की product ज़्यादा है, products की energy कम है। Whenever the reactants energy is higher than the product's energy, that means it is an exothermic reaction. अगर आपके पास डायग्राम कुछ ऐसी होती, वैसी, अब प्रोडक्ट की ज्यादा हो अगर और रिएक्टेंट की कम है, दैट वुड बी एंडोथर्मिक वाला। The equation for the reaction can be represented as shown. Use the bond energies in the table to calculate the energy change in the reaction. Now, I think I have practiced a lot of these questions with you guys already. So energy need to break the bonds to make the bonds, और फिर आप total energy change निकाल सकते हो by using the formula of breaking minus making, ठीक है। When you use this formula, आप पहले यहाँ पे सारे ब्रेकिंग बॉन्ड्स निकालोगे, ब्रेक कितने हुए थे आपके पास, को 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे, किसके, CH के। प्लस आपके पास Cl का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था, गॉट इट। Cl का जो बॉन्ड है, उसके बाद बॉन्ड्स फॉर्म कौन से हुए थे आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 CH के फॉर्म भी हुए हैं दोबारा, और एक आपके पास CCl भी फॉर्म हुआ है, CCl, एंड एक आपके पास HCl फॉर्म हुआ है। So do practice this question yourself as well. These were the bonds broken. These were the bonds that were made. दोनों की separate energies निकाल के subtract करेंगे, you'll get the overall energy change of the reaction. A carboxylic acid Y has the structure shown. What is the general formula of carboxylic acid? CnH2n plus 1COOH. ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको गिवन है, एक कार्बन है, तो इट इज गोइंग टू बी मिथानोइक एसिड। मोलेकुलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सी, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है इसमें, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, हम शो कर देते हैं। तो कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, बट इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ओवर हेयर, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी एक बॉन्ड इसने इधर बनाया हुआ है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, अभी भी लेकिन 6 आएंगे बाकी, और ऑक्सीजन के यहाँ भी, हाँ, हमने पूरे करने हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ओवर हेयर। बट मेक श्योर ये आप डबल बॉन्ड जरूर सही बना लो, ठीक है, बिकॉज यू नो के COOH होता है, ठीक है, और साथ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, इसी की रिप्रेजेंटेशन ये गिवन। Carboxylic acid Y will react with propanol to form ester Z. Propanol is the alcohol, carboxylic acid methanoic acid था, तो नेम क्या हो जाएगा एस्टर का। कैन समवन टेल मी द नेम ऑफ द एस्टर। अगर आपके पास जो अल्कोहल है वो प्रोपेनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, मिथेनोइक, व्हाट्स द नेम ऑफ द एस्टर, Propyl ethanoate. दोबारा बताएं। I said propyl ethanoate. प्रोपल मेथेनोएट, यस। प्रोपाइल कहाँ से आया, प्रोपेनॉल से। मिथेनोएट कहाँ से आया, मिथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और साथ ही आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो ये प्रोपेनॉल के 3 कार्बन्स, रेस्ट ऑफ देम विल बी ऑल हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट, प्रोपाइल मीथेनोएट।
नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, तो वाटर इज लॉस्ट, आपके पास OH कार्बोक्सिलिक लीव कर जाते हैं और H आपके पास अल्कोहल से निकलता है। एक और एस्टर बताएं जो एग्जैक्ट जी का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, उसका नाम क्या होगा? सोचे। टोटल कार्बन 4 ही रहने चाहिए, एक इधर 3 इधर, टोटल 4 कार्बन ही रहने चाहिए, लेकिन एक आइसोमर का नाम बताएगा कोई? दो हो सकते हैं। अगर मैं मिथाइल प्रोपानोएट ले लूं, isn't that an isomer? Got it? क्योंकि देखो मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स भी सेम 2 ही रहेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी आप देखोगे 7 ही रहेंगे। दी ओनली डिफरेंस इज कि पहले प्रोपाइल आपको 3 कार्बन दे रहा था, मिथेनोएट आपको एक दे रहा था, अब मैंने जो बनाया वो क्या है? मिथाइल प्रोपोनोएट। अब मिथाइल एक कार्बन दे रहे, प्रोपोनोएट 3 कार्बन दे रहा। आइसोमर्स आर व्हाट? सेम molecular formula but different structural formula. A carboxylic acid which is a structural isomer of ester Z। एक ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं एग्जैक्टली लाइक एस्टर जी? व्हाट इज द नेम ऑफ अ 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड? Butanoic acid. गुड, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेज पेपर।